Good morning, student. Myself Chirag Sukhani, and I'm going to teach you Advanced Financial Management subject. Now, today, or we can say in earlier session, we completed the calculation part of the cost of equity. Okay, and then calculation part of the how the growth rate is calculated when the year-wise dividend is given. Clear? Now, today in this session, we explain the next source, that is retained earning, that is cost of the retained earning. Retained earning is nothing but that is reserve in the surplus. Okay, so always one question arises, retained earning are the internal source of the fund. So internal source of the fund है which is not raised from the outside, so उसके ऊपर क्या cost होगा. Okay, but it is not true, it also incurs certain cost. Okay, so today in this session we discussed about the that is cost of the retained earning. Clear? Now, so cost of the retained earning, it is denoted as what? KR. Clear? Now, the retained earning as a source of the finance for the investment proposal which is different from the other sources. Okay, so retained earning, it is also termed as what? Source of the finance for the investment proposal which is totally different from the other sources. That means it is different from the debentures, preference shares and the equity. How? First, the use of debt and the preference shares is associated with contractual obligations to pay fixed rate of interest and the dividend. Agree ना कि जो डेप्ट है दैट इज डिबेंचर, उसके ऊपर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है. जो डेप्ट के ऊपर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है, इट इज प्री डिटरमाइंड. Okay, likewise in case of preference shares, dividend is also fixed कि some percentage of dividend देना ही देना है. Okay, so use of debt and the preference shares is associated with the contractual obligations to pay fixed rate of interest and the dividend. Clear? Likewise, in the case of ordinary shares, that is equity shares, although there is no provision for any predetermined payment of dividend to the shareholders, yet a certain expected rate of dividend provides the starting point for the computation of the cost of equity. Agree ना? हम लोग ने कैलकुलेशन किया, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी ना. ऑल्दो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ऊपर भी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता है कि इतना परसेंटेज डिविडेंड पे करना ही करना है, ये अमाउंट फिक्स नहीं होता है. बट जब भी हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट किया, वो टाइम पे फर्म ने एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिक्लेयर किया था कि इतना डिविडेंड होगा इन फ्यूचर. ओके, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स इतना डिविडेंड होगा. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सपेक्टेड डिविडेंड हम लोग ने यूज किया फॉर द कंप्यूटेशन, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. बट there is no obligations, that is formal or the implied, on the firm to pay the retained on the retained earning. As on में, so how the retained earning, it is different from the other source. In case of debt, fixed amount of interest we have to pay. In case of preference shares, we have to pay fixed amount of dividend. But in case of ordinary shares, equity shares, although there is no fixed amount of dividend we have to pay, but for the calculation of the cost of equity, we assume the expected dividend for the calculation of the cost of equity. But in case of retained earning, there is no formal obligations, there is no implied obligations to pay the return on the retained earning. Clear? That is why retained earning, it is different from the debt, preference shares and the equity. Now, the retained earning may appear to carrying since they represent the fund which have not been raised from the outside. And a retained earning, it is what? Reserve which is kept. ओके, यानी फर्म ने प्रॉफिट अर्न करते हैं ना, वो प्रॉफिट में से सम पोर्शन ऑफ प्रॉफिट इट इज रिजर्व, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रिटेन. सो रिटेन अर्निंग, इट इज नॉट रेज फ्रॉम द आउटसाइड, but retained earning, it is raised from the inside of the firm. Okay, so it is not raised from the outside. So the contention that कि रिटेन अर्निंग आर फ्री ऑफ कॉस्ट, बट ऑब्वियस ना कि जो आप विद इन द फर्म से रेज करते हो, ओके, तो उसके ऊपर काहे का कॉस्ट पे करना है. सो द कंटेंशन दैट कि रिटेन अर्निंग आर फ्री ऑफ कॉस्ट, हावेवर इट इज नॉट करेक्ट, ये भी सही नहीं है. नाउ
ऑन द कॉन्ट्ररी दे डू इन्वॉल्व कॉस्ट लाइक अदर सोर्सेज, जैसे डेप्ट, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी के ऊपर जो कॉस्ट लगता है ना, लाइकवाइज रिटेन्ड अर्निंग के ऊपर भी क्या लगेगा, कॉस्ट लगेगा. ओके, नाउ इट इज proved that the firm is not obliged to pay the return on the retained earning. Okay, that means what, कि फर्म को रिटेन्ड अर्निंग के ऊपर डिविडेंड पे करना ही करना है, ये एकदम ऑब्लिगेशंस नहीं है, प्री डिटरमाइंड नहीं है. ओके, बट इट इज रिटेंशन फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ द फर्म. ओके, यानी जो फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया, ओके, तो जो भी फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया उसमें से सम ऑफ द पोर्शन अपने पास रख दिया इंस्टेड ऑफ पेमेंट टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. ओके, सो रिटेन जो भी अर्निंग था इट इज रिटेन्ड फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ द फर्म. नाउ इफ अर्निंग्स वर नॉट रिटेन्ड देन दे वुड हैव बीन पेड आउट अप टू दी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स एज ए डिविडेंड. यानी अगर प्रॉफिट का कोई भी परसेंटेज रिजर्व नहीं रखते तो जितना भी प्रॉफिट इट इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. नाउ व्हेन द अर्निंग्स आर दस रिटेन्ड, शेयर होल्डर्स आर फोर्स्ड टू फॉरगॉट द डिविडेंड. ओके, यानी अगर फर्म ने रिजर्व रखा इंस्टेड ऑफ पेमेंट टू द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ओके, सो शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स को भूल जाना पड़ेगा कि हम लोग को कुछ डिविडेंड मिलेगा. ओके, सो व्हेन द अर्निंग्स आर दस रिटेन ना, शेयर होल्डर्स आर फोर्स्ड टू फॉरगॉट द डिविडेंड. देयरफॉर व्हाट इज कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग? The cost of retained earning may be defined as what, opportunity cost in terms of dividend foregone by the equity shareholders. Okay, so retained earning को कौन सा cost use करना है? That is called as what, opportunity cost. Why it is opportunity cost? Okay, यानी जो भी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स, उसको तो डिविडेंड भूल जाना पड़ रहा है बिकॉज उसको नहीं मिल रहा है ना डिविडेंड. वो फर्म फ्यूचर एक्सपांशन के लिए, ग्रोथ के लिए वो अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रहा है रिटेन अर्निंग को इंस्टेड ऑफ पेमेंट टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. ओके, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो डिविडेंड नहीं मिल रहा है, नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो वो डिविडेंड फॉरगो करना पड़ेगा, भूल जाना पड़ेगा. दैट इज वाई cost of retained earning it is termed as what, it is termed as what, opportunity cost in terms of dividend which is foregone by the equity shareholders. Clear? Since the shareholders generally expect dividend from their investment, always we as a equity shareholders of any company we always expect that कि जो भी मेरा investment है ना उसके ऊपर मुझे वो dividend मिलेगा. That is why the cost of retained earning will be equal to the shareholders required rate of return, that is cost of equity. यानी जितना cost of equity है ना वही आपका cost of retained earning आपको assume करना है. आया समझ में? बिकॉज शेयर होल्डर्स जनरली एक्सपेक्ट करते हैं ना कि हम लोग को डिविडेंड मिलना चाहिए फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट. ओके, तो जो भी वो लोग ने इन्वेस्टमेंट किया था उसके ऊपर डिविडेंड वो लोग को नहीं मिल रहा है. ओके, वो लोग को वो डिविडेंड भूल जाना पड़ रहा है. ओके, सो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फर्म क्या एज्यूम करता है कि कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग विल बी इक्वल टू द शेयर होल्डर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी. सिंस रिटेन अर्निंग डू नॉट इन्वॉल्व एनी फ्लोटेशन कॉस्ट बिकॉज वो तो विद इन द फर्म अराइज होगा. ओके, तो आपको ब्रोकरेज चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट, ओके, कमीशन, ये सब पे नहीं करना है. सो रिटेन अर्निंग के ऊपर कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लगेगा. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग दैट इज KR इट इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ओके, सो cost of retained earning is nothing but it is equal to the shareholders required rate of return, that is cost of equity. So formula भी सेम ही रहेगा कि cost of retained earning is equal to D1 upon PO plus G. D1 is what, expected dividend, PO यानी price of the shares and G यानी growth rate. But remember one thing, in case of cost of retained earning जो PO है, price, वो as usual ले लेना है. वो price में से आपको जो flotation cost माइनस करना नहीं है. हम लोग ने कॉस्ट ऑफ इक्विटी में माइनस किया कि D1 अपॉन PO प्लस G. ओके, सो वॉट एवर फ्लोटेशन कॉस्ट इट इज इनकर्ड बाय द फर्म इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द करंट प्राइस, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द सेलिंग प्राइस. बट
in case of cost of retain earning, it is not deducted. Okay, so जितना आपका current price है ना वही आपको ले लेना है. So D1 upon PO plus G. So D1 is what expected dividend, PO यानी selling price plus G. In short, आया ना आपको समझ में what is retain earning? So in brief, कि cost of retain earning different है as compared to the other source of the fund. बिकॉज डेप्ट प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट पे कर देना है. बट इन केस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स दैट इज इक्विटी शेयर्स, दो उसके ऊपर फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड नहीं पे करना है, बट हम लोग एक्सपेक्टेड डिविडेंड एज्यूम करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ओके, सो ऑलवेज क्वेश्चन अराइज कि रिटेन अर्निंग इट इज द इंटरनल सोर्स ऑफ द फंड. ओके, बट उसके ऊपर क्या कॉस्ट पे करना है. बट इट इज नॉट ट्रू, इट ऑल्सो इनकर्ड सर्टन कॉस्ट, बिकॉज if the earnings are not paid to the equity shareholders na, then the equity shareholders has to forgo the dividend. That is why cost of retain earning it is termed as what? Opportunity cost, which is forgone by the equity shareholders. आया समझ में? So remember one thing कि cost of retain earning it is nothing but cost of equity shares. Okay, that is cost of shareholders require rate of return. Okay, but remember जो retain earning it is raised from the inside, that is within the firm, so it does not incur any flotation costs. Okay, so cost of retain earning is what? KR is equal to D1 upon PO plus G. Clear? So हम लोग ने जितने भी 4 सोर्स है कंप्लीट कर लिया. that is cost of debt, cost of preference shares, cost of equity shares and the cost of retained earning. Okay, so जितने भी आपके individual cost है ये आपका basic हुआ, concept हुआ. That is cost of debt, cost of preference shares, cost of equity and the cost of retained earning. After that जो आपको sums पूछा जाता है that is called as weighted average cost of capital. Okay, it is denoted as what? WACC, that is weighted average cost of capital. Now ये जो WACC है ना ये आपको सम्स में एग्जाम में आता है 13 to 14 मार्क्स के लिए. ओके, सो ये WACC कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ने आगे सब जो इंडिविजुअल सम्स किया वो आपका बेसिक था. दैट इज कॉस्ट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड द कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग. सो ये मेन इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इट इज डिनोटेड एज व्हाट? WACC. हम लोग सम्स करेंगे ना आपको समझ में आएगा. अभी ये खाली थियोरेटिकल पोर्शन है. Now, WACC is nothing but it is weighted average cost of various source of the fund. Now, various source of the fund यानी debt, preference shares, equity, retained earning, term loan, whatever. Okay, so it is weighted average cost of the various source of the fund, where the weights are being the proportion of each source of fund in the capital structure. Now, what do you mean by capital structure? कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, आपने बैलेंस शीट देखा होगा ना. बैलेंस शीट में ऐसा आता है ना कि इक्विटी दैट मच ऑफ अमाउंट, ओके, टर्म लोन इतना अमाउंट है, सिक्योर लोन इतना है, अनसिक्योर लोन इतना अमाउंट है. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल स्ट्रक्चर. सो व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर इज व्हाट? प्रपोर्शन ऑफ डेब्ट, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स इन अ फर्म्स बैलेंस शीट. यानी बैलेंस शीट में जो इक्विटी, डेब्ट, प्रेफरेंस शेयर्स, ओके, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन का जो भी प्रपोर्शन दिखाते हैं ना दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल स्ट्रक्चर. ओके, सो वेट आपको कैसे मेजर करना है? वेट्स आर व्हाट? प्रपोर्शन ऑफ ईच सोर्स ऑफ द फंड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर. एंड दिस WACC इट इज डिनोटेड एज व्हाट? K0 और KO, वट एवर आप प्रोनाउंसिएशन कोई भी आप डिनोट कर सकते, दैट इज K0 या KO. ओके, इट इज डिनोटेड एज व्हाट? KO. नाउ WACC, that is weighted average cost of capital, can be computed by using two method, that is book value weight method and the market value weight method. आपको 2 मेथड से WACC कैलकुलेट करना. आपको सम्स में दे ही देते हैं कि कैलकुलेट WACC ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू वेट एंड द WACC ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट वैल्यू वेट. ओके, सो WACC can be computed by 2 way, that is book value weight and the market value weight. Clear? चलो, फर्स्ट व्हाट इज बुक वैल्यू वेट? Now book value weight means what? It represents the values as per the balance sheet and are calculated as follow. Okay, and whatever values it is given in the balance sheet,
that is called as what? Book value weight. So book value weight represent the values as per the balance sheet. Okay, and how it is calculated? It is calculated as this with the help of this formula. Now, book value weight for equity share is what? Face value of the equity share into number of equity share. Face value into number of equity shares. Likewise, book value of preference shares यानी face value into number of preference shares. Likewise, book value of debenture यानी face value of the debenture into number of debenture. And the book value of retained earning का तो कोई face value होता ही नहीं ना, retained earning का तो directly amount होता है. So same amount आपको use करना है in the balance sheet, which is appear in the balance sheet. Clear? That is called as what? Book value weight. And what is market value weight? मार्केट वैल्यू वेट यानी इट रिप्रेजेंट द वैल्यूज एज पर द मार्केट कोटेशंस, बिकॉज जो भी आपका डेब्ट इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स मार्केट में ट्रेड होता है, ओके, तो जो आपकी करंट मार्केट प्राइस है वो आपको यूज करना है. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एज पर द मार्केट कोटेशन, वैल्यूज एज पर द मार्केट कोटेशन. एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड? कि मार्केट वैल्यू वेट फॉर द इक्विटी शेयर इज व्हाट? करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. नाउ कैसे? कि कभी भी जो भी आपका इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स डिबेंचर्स फेस वैल्यू से इश्यू होता है, ओके, फिर बाद में वो मार्केट में ट्रेड होता है, ओके, उसकी प्राइस अप एंड डाउन होती है. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, करंट मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर. ओके, सो मार्केट वैल्यू वेट में खाली 3 सोर्स आएगा, दैट इज इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स एंड द डिबेंचर, बिकॉज उसका ही मार्केट वैल्यू होता है ना. रिटेन अर्निंग तो विद इन द फर्म होता है ना, तो उसका कोई मार्केट वैल्यू नहीं होता है. सो मार्केट वैल्यू वेट फॉर इक्विटी शेयर, मार्केट वैल्यू वेट फॉर प्रेफरेंस शेयर्स एंड द मार्केट वैल्यू वेट फॉर द डिबेंचर. Okay, now how it is calculated? That is steps in the determination of WACC. Now first step में क्या calculate करना है? Calculate the cost of each of the specific sources of the fund on after tax basis. That is cost of debt, cost of equity and cost of preference shares, etc. यानी हम लोग ने अभी किया, आगे जो भी जितने भी sums किया, ये आपको first step में करना है. Based on the information, we have to calculate the cost of each source. Each source यानी cost of debt, that is KD. Cost of preference shares, that is KP, cost of the equity shares, that is KE, and the cost of retained earning, that is KR. So firstly we have to calculate the cost of each source of the specific sources of the fund. Then in step 2 calculate the weight आपको निकालना है. कैसे मिलता है? That is proportion of each source of the fund in the capital structure. कैपिटल स्ट्रक्चर में जितना प्रोपोर्शन है ना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? वेट. दैट इज व्हाट? स्टेप नंबर 2. देन स्टेप नंबर 3 मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स बाय वेट. वेट एंड कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना है. सो स्टेप नंबर 4 में क्या करना है? ऐड करना है वेटेड कॉस्ट ऑफ ऑल सोर्सेस ऑफ द फंड. ओके, तो जैसे हम सम्स करेंगे ना, आपको एकदम आइडिया आ जाएगा. सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द ईच इंडिविजुअल कॉस्ट, देन वेट निकालो, दैट इज प्रोपोर्शन ऑफ ईच सोर्स ऑफ द फंड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, देन कॉस्ट एंड वेट को मल्टीप्लाई करो, देन उसका टोटल करो, तो आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज WACC. ओके, सो ये फॉर्मेट है, दैट इज फॉर्मेट ऑफ द स्टेटमेंट विच शोज कंप्यूटेशन ऑफ द WACC यूजिंग बुक वैल्यू वेट. 2 मेथड से करना है ना, दैट इज बुक वैल्यू वेट एंड द मार्केट वैल्यू वेट. ओके, सो यहाँ पे सोर्सेस ऑफ कैपिटल होता है, सोर्स होता है ना, दैट इज इक्विटी शेयर्स, रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स. सो फर्स्ट इज व्हाट? सोर्स. सेकंड में क्या करना है? अमाउंट ऑफ ईच सोर्स ऑफ द कैपिटल. तो ये तो दे ही दिया था सम्स में अमाउंट. सो एग्जांपल इक्विटी शेयर्स 1 लाख, रिटेन अर्निंग 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स 5 लाख, डिबेंचर 5 लाख. ओके, सो एज्यूम ये आपका क्या होता है? अमाउंट. सो एज्यूम इक्विटी शेयर्स 1 लाख है, रिटेन अर्निंग 2 लाख है, प्रेफरेंस शेयर्स 3 लाख से, एंड द डिबेंचर 4 lakhs है. सो 1 2 3 4 कितना आएगा? 10 lakhs आ जाएगा. सो यहाँ पे टोटल क्या होगा? 10 lakhs. थर्ड में क्या करोगे? प्रोपोर्शन निकालना है, प्रोपोर्शन ऑफ ईच सोर्स ऑफ द कैपिटल. दैट मीन्स 10 lakhs में से 1 lakh इक्विटी शेयर है, सो प्रोपोर्शन क्या बनेगा? 10%, दैट इज 0.10. 2 lakh है तो 0.20, 3 lakh है तो 0.30 एंड 4 lakh है तो 0.40.
उसका टोटल ऑलवेज क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए. प्रपोर्शन ऑलवेज क्या आना चाहिए, 1. दैट इज प्रपोर्शन ऑफ ईच सोर्स ऑफ द कैपिटल. और ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ द कैपिटल. जो कॉस्ट आपको फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करने के लिए बोला था ना वो. ओके, सो कॉस्ट कैलकुलेट किया, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी के ई का आंसर है यहाँ पे आएगा. रिटेन अर्निंग यानी के आर का आंसर आएगा. प्रेफरेंस शेयर्स यानी के पी का आंसर आएगा. एंड द डिबेंचर यानी के डी का आंसर आएगा. ओके, देन लास्ट इज व्हाट, वेटेड कॉस्ट. वेटेड कॉस्ट इज व्हाट, प्रपोर्शन इनटू कॉस्ट. प्रपोर्शन इनटू कॉस्ट करेंगे ना तो यहाँ पे आपका यहाँ पे वेट आएगा. उसका टोटल करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. आया समझ में, दैट इज व्हाट यूजिंग बुक वैल्यू वेट यानी इट रिप्रेजेंट द वैल्यूज एज पर दी बैलेंस शीट. देन मार्केट वैल्यू का फॉर्मेट तो सेम ही है. फॉर्मेट क्या है, सेम ही है. दैट इज यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट. सोर्स लेना है, अमाउंट लेना है, प्रपोर्शन निकालना है, देन हर एक का कॉस्ट एंड वेटेड कॉस्ट. बट यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे कितने सोर्स आएंगे, ओनली 3. दैट इज इक्विटी, प्रेफरेंस एंड द डिबेंचर. इन शॉर्ट रिटेन्ड अर्निंग नहीं आएगा बिकॉज इट इज नॉट ट्रेडेड इन दी मार्केट. बट यहाँ पे नोट डाला है, रिटेन अर्निंग आर नॉट shown separately since market value of equity share represents the combined market value of equity share and the return earning. And in some of the cases equity and return earning का combine आपको अमाउंट दिया होगा तो वो केसेस में रिटेन अर्निंग को भी मार्केट वैल्यू में कंसिडर्ड करना है. आया समझ में. सो ये आपका कैलकुलेशन पार्ट, दैट इज थियोरेटिकल पोर्शन हुआ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो याद रखो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 2 मेथड से होता है, दैट इज बुक वैल्यू वेट एंड द मार्केट वैल्यू. ओके, बुक वैल्यू यानी वैल्यूज एज पर द बैलेंस शीट एंड मार्केट यानी एज पर द मार्केट कोटेशन. ओके, सो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंडिविजुअल कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज के डी, के ई, के पी, के आर. फिर बाद में आपको सोर्स डालना पड़ेगा. फिर बाद में उसका प्रपोर्शन निकालना है. प्रपोर्शन निकाल के उसका कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या मिल जाएगा, वेटेड कॉस्ट. टोटल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. क्लियर. नाउ इन नेक्स्ट सेशन हम लोग सम्स कैलकुलेट करेंगे WACC का, जो आपको एग्जाम में कंपल्सरी क्वेश्चन में आता है. क्वेश्चन नंबर 2 कंपल्सरी सम्स 13 मार्क्स में. तो ये हम लोग स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, बाय, टेक केयर.